بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 5 liquid exercise question. Now question 3 part A. Give the general properties of liquid as to diffusion, compression, expansion, intermolecular forces and kinetic energy. ये जो हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है इनकी बेसिस के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं about diffusion. The movement of molecule from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called diffusion. Molecules का मूव करना ऐसे एरिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोलेक्यूल प्रेजेंट है, हाई concentration में प्रेजेंट है, to the area where their concentration is low और वो वहाँ पे small amount में प्रेजेंट है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं diffusion. Diffusion also occurs in liquid due to the motion of its molecules. Diffusion liquid में occur होती है due to the motion of liquid molecules. Diffusion occurs at all temperature above the absolute zero. Absolute zero से ऊपर जितनी भी temperatures हैं उनमें तमाम temperatures ऊपर diffusion के phenomena occur हो सकते हैं. However, diffusion is slower in liquid than in gases. It is because of slower motion of molecules in liquid than in gases. लेकिन जो डिफ्यूजन रेट है इन लिक्विड वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू गैसेस. उसकी वजह क्या है, जो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन है वो स्लोअर है देन एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि गैसेस का रैंडम मोशन है और वहाँ पे फास्ट मूवमेंट है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की. इसकी वजह से गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो हमारे पास ग्रेटर है देन एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. नाउ कंप्रेशन. In liquid, intermolecular distances are very small, so by increasing the pressure, density of molecule does not change significantly. Liquid में क्या हमारे पास intermolecular distance जो है वो very small है as compared to gases. तो जब हम pressure को increase करते हैं तो जो density of molecules है वो कुछ खासी change नहीं होती. Thus liquids are compressible but not as much as gases. इसकी वजह से क्या है, liquid compressible तो है लेकिन as compared to gases उनकी जो compression है वो बहुत small. Now expansion. The liquid expand on heating because the intermolecular forces between them decreases. जब हम liquid को heat देते हैं यानी कि उसकी kinetic energy को increase करते हैं तो क्या होता है, intermolecular forces जो होती हैं उनके दरमियान वो decrease हो जाती हैं. Moreover, the increase in temperature increases the effective collisions between the molecules. और जब हम temperature increase करते हैं तो kinetic energy molecules increase होती है, तो उसकी वजह से कि उनके दरमियान जो collision है वो भी increase हो जाती है. और जब हम temperature को decrease करते हैं तो contraction of molecules होती है, इसकी वजह से उनकी kinetic energy भी लो हो जाती है और collision भी उनके दरमियान स्लो हो जाए. दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर मेकिंग थर्मोमीटर. इस प्रॉपर्टी को देखते हुए जो थर्मोमीटर है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है थर्मोमीटर की, मरकरी थर्मोमीटर्स. इन थर्मोमीटर इफ टेम्परेचर राइजेस द मरकरी एक्सपेंड्स इन कैपिलरी ट्यूब. थर्मोमीटर में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है वो एक्सपेंड हो जाता है. As the volume of capillary is much less than the volume of bulk containing mercury, a small expansion gives a larger movement of mercury thread. और जिस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो हमारे पास मरकरी प्रेजेंट होता है उस कैपिलरी ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो लेस देन होता है देन द वॉल्यूम ऑफ बल्क कंटेनिंग मरकरी. तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंशन है वो बहुत स्मॉल होती है और जब स्मॉल एक्सपेंशन से हमारे पास क्या होता है, जो मरकरी थ्रेड है वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट तय करती है. नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. The attractive forces existing between the individual particles of a substance are called intermolecular forces. जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और इससे क्या होता है, जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है लिक्विड की सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को. नाउ क्वेश्चन 3 पार्ट ए का पार्ट ई काइनेटिक एनर्जी.
The molecules due to strong intermolecular forces has minimum movement and collision so they have low kinetic energy. अब क्यों क्या होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है एज कम्पेयर टू गैसेस बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से क्या होता है जो हमारे लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो मिनिमम होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसकी वजह से क्या होता है जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत कम होती है देन एज कम्पेयर टू गैसेस। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है वो इंक्रीज कर जाती है और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन है वो भी इंक्रीज कर जाती है और वो बहुत तेज़ी से मूव करने शुरू कर देते हैं और वो कोलिजन रेट भी उनका बढ़ जाता है। नाउ क्वेश्चन 3 पार्ट बी। Explain on the basis of kinetic molecular theory why the boiling point of liquid remains constant although heat is continuously supplied to the liquid। हमने KMT को मद्देनजर रखते हुए ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कांस्टेंट क्यों रहता है जबकि हमारे पास जब एक पॉइंट रीच हो जाता है और हम हीट मजीद सप्लाई कर रहे होते हैं तो उस हीट के बावजूद बॉइलिंग पॉइंट हमारा कांस्टेंट क्यों रहता है। तो इसके जो आंसर है वो क्या है जी द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट इवन दो हीट इज सप्लाइड कॉन्स्टेंटली। जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है अगरचे हम उसको कंटिन्यूसली हीट दिए जा रहे हैं because all the heat energy provided is used up in changing the state from liquid to gaseous water vapor। क्योंकि अब क्या हो रहा है जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको गैसियस स्टेट में लाने के लिए वो हीट यूज हो रही है। Therefore, all heat energy provided to the liquid increases the kinetic energy of particles and temperature does not increase। तो ये वाली जो हीट है हमारी क्या हो रही है इससे काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा। जो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए तो अगर हम मजीद हीट दे रहे हैं तो वो हीट काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा रही है लेकिन टेम्परेचर जो है वो उसने कांस्टेंट रखा हुआ है। So supplied heat energy is used to increase kinetic energy of molecules. Now question for part A. Define and explain evaporation। Evaporation क्या है जी It is a process by which a liquid is transformed into vapor। liquid का vapor में convert होना उस process को हम कहते हैं evaporation। Evaporation is a form of vaporization that usually happens on the surface of liquid and it involves the transition of liquid particles into the gaseous phase। एक जो फिनोमेना इवेपोरेशन का ये एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अकर होता है और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू गैसियस फेज। Surface molecules whose kinetic energy are higher than the average kinetic energies overcome the intermolecular forces that bind them to the liquid and enters the gas phase। जिन सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके लिक्विड से गैस फेज में एंटर हो जाते हैं। After this escape, the average kinetic energy of remaining molecule decreases। और जब हमारे पास हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल escape कर गए हैं सरफेस को तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो जाती है। Therefore, temperature of liquid decreases और जो हमारे लिक्विड का टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव करके और हमारे पास जो रिमेनिंग है उनकी एनर्जी क्या है लो है। And hence evaporation is a cooling process। इस ही वजह से हम कहते हैं evaporation is the cooling। Now question for part B। What are the factors affecting evaporation? Temperature। On increasing the temperature, the rate of evaporation also increases। जैसे जैसे हम temperature को increase करते हैं जो हमारे rate of evaporation है वो भी increase होता रहता है। At higher temperature, the molecules are moving faster, therefore it is more likely for a molecule to have enough energy to break away from liquid to become a gas। जब हमारे पास हाई टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स के हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इनफ एनर्जी लेकर जो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक कर लें और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज वाई क्लोथ्स ड्राई मोर रेडली इन समर देन इन विंटर। अब समर में क्या होता है हमारे जो टेम्परेचर है वो हाई होता है तो इसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है इंक्रीज होता है जबकि विंटर में टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लो है। यही वजह है कि हमारे जो कपड़े हैं जब हम उनको धूप में पिलाते हैं इन समर तो वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं एज कम्पेयर टू देन इन विंटर।
नेक्स्ट है जी सरफेस एरिया। As surface area increases, the rate of evaporation also increases. अब जब surface area हमारा increase हो गया तो ज़्यादा जो liquid के molecules हैं वो surface से contact में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो rate of evaporation है वो भी increase होगा. The more area is exposed to air, allowing water molecules to acquire more heat energy from the surrounding. अब जो हमारा ज़्यादा एरिया है वो एक्सपोज्ड हो गया है एयर में, और वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा है कि वो हीट एनर्जी को एक्वायर करें या एब्जॉर्ब करें फ्रॉम सराउंडिंग, और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए. नेक्स्ट है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. The liquid with strong intermolecular forces have less evaporation. जैसे जैसे लिक्विड के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता जाएगा. एग्जाम्पल क्या जी, वाटर हैज लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन देन पेट्रोल. इसी वजह के वाटर के अंदर जो हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है एच बॉन्डिंग की वजह से, और पेट्रोल के अंदर क्या है, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस है बिटवीन मॉलिक्यूल्स. यही वजह है कि पेट्रोल जो है हमारा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है देन एज कम्पेयर टू वाटर. नेक्स्ट है जी विंड स्पीड. Wind speed and rate of evaporation are directly proportional to each other. जैसे जैसे wind speed increase होगी, rate of evaporation भी increase होगा. Next है जी humidity. Humidity and rate of evaporation are inverse relation to each other. जितनी humidity ज़्यादा होगी, rate of evaporation कम होगा, और जितनी humidity कम होगी, rate of evaporation increase होगा. ह्यूमिडिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जैसे जैसे कंसंट्रेशन वाटर वेपर की इंक्रीज होगी तो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और अगर ये कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. Now question 4 part C. Different liquids have different rates of evaporation. Explain with the reference of ether and alcohol. जो हमारे पास different liquids होते हैं उनके जो rate of evaporation है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. हमने इस बात को explain करना है reference लेते हुए ether और alcohol का. The liquid with strong intermolecular forces have less evaporation. जैसे जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो हमारे पास इवेपोरेशन क्या है वो कम होती जाएगी. एग्जाम्पल क्या है जी, इन अल्कोहल एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट व्हाइल इन ईथर वीक वंडर वंडरवॉल फोर्सेस आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इवेपोरेशन ऑफ अल्कोहल इज देन दैट ऑफ ईथर. अल्कोहल में क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान एच बॉन्डिंग होती है, और ईथर में क्या है, वीक वंडर वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो ईथर का रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल. नाउ क्वेश्चन 5A. Define and explain vapor pressure. How equilibrium is established between evaporation and condensation. Vapor pressure को हमने explain करना है और हमने बताना है कि evaporation और condensation के दरमियान equilibrium कैसे established होता है. Vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with a solid or liquid in a closed container at a given temperature is called the vapor pressure. जो pressure exert किया जाता है लिक्विड के वेपर्स से जब वो इक्विलिब्रियम में आते हैं विद अ सॉलिड और लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर और एट गिवन टेम्परेचर, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. यानी कि जो लिक्विड के वेपर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है जब लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया है इन सॉलिड और लिक्विड कंटेनर, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है या वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. ये दोनों प्रोसेसेस एट अ टाइम अकर हो रहे होते हैं. जब ये वाला स्टेज रीच हो जाता है हमारे पास, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. कंडेंसेशन. इन ओपन कंटेनर इवेपोरेशन कंटिन्यूस अंटिल ऑल ऑफ द लिक्विड इज गॉन. जब हमारे पास कंटेनर ओपन है, कोई हमारे पास जो है आइसोलेशन नहीं है या क्लोज कंटेनर नहीं है, तो इवेपोरेशन क्या होगी, कंटिन्यूसली होती रहेगी जब तक कि सारा लिक्विड इवेपोरेट नहीं हो जाता. लेकिन जब हमने लिक्विड को क्लोज कंटेनर के अंदर प्लेस कर दिया तो हमारे जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिक्रीज होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो चेंज नहीं होगी. इन क्लोज कंटेनर द वेपर्स कैन नॉट स्केप. और क्लोज कंटेनर में क्या होता है, वेपर्स जो हैं वो स्केप नहीं कर पाते. Therefore, as vapor concentration increases, some of the molecules lose energy and return to liquid state. और हमारे पास
क्लोज कंटेनर में वेपर स्केप नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो हमारे वेपर कन्वर्ट हुए हैं तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि वेपर्स का लिक्विड में दोबारा तब्दील होना कहलाता है कंडेंसेशन। नाउ evaporation. It involves molecule leaving the container and changes into vapors. While liquid is placed in a closed container, it begins to evaporate at constant rate. Evaporation क्या होता है कि लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। नाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? When the rate of condensation is equal to the rate of evaporation, at this stage the number of molecules entering the gas phase equal to the number of molecules returning vapors into liquid molecules. The system is said to be in dynamic equilibrium. जब हमारे पास ऐसे स्टेज रीच हो जाए कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन की, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब ये स्टेज रीच हो जाती है तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ क्वेश्चन 5 पार्ट बी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक तो जो फैक्टर है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को जो अफेक्ट करता है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप सॉलिड और लिक्विड डिटरमिन इट्स वेपर प्रेशर। जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है उसकी मदद से हम जो है वेपर प्रेशर को डिटरमिन कर सकते हैं। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर relatively strong, the vapor pressure will be relatively low. जैसे जैसे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, और अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। एग्जांपल्स, water having strong hydrogen bonding possesses low vapor pressure, while petrol have high vapor pressure due to weak Lindner forces. वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या है, जो उसका वेपर प्रेशर है वो लो है। जबकि पेट्रोल में क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट है यानी कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो हाई है। Next is temperature. At higher temperature, more molecules have enough energy to escape from liquid or solid. At a lower temperature, fewer molecules have sufficient energy to escape from the liquid to solid. जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को गेन करके तो लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए। एट अ लोअर टेम्परेचर, और जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो हमारे पास बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सफिशिएंट एनर्जी लेते हैं और वो स्केप कर जाते हैं या तो लिक्विड या सॉलिड में से। And as temperature increases, the vapor pressure increases because intermolecular forces decreases. और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या है वो इंक्रीज हो गया जाता है। इसकी वजह क्या है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम हो जाए। Now question 5 part C, kinetically how will you explain the effect of temperature on vapor pressure? At higher temperature, more molecules have enough energy to escape from the liquid or solid. At a lower temperature, fewer molecules have sufficient energy to escape from the liquid or solid. And as temperature increases, the vapor pressure increases because intermolecular forces decreases. Example क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना है जी 23.7 टॉन, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना है 760 टॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही हैं। नाउ क्वेश्चन 6 पार्ट ए, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर वो इक्वल टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेनेशन क्या है जी, when a liquid is heated the vapor pressure goes on increasing। जब हम
लिक्विड को हीट करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या है वो इंक्रीज होता रहता है। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड का वो इक्वल टू हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। The reason for this is that the bubbles of vapor which are formed in the interior of liquid have greater internal pressure than atmospheric pressure on the surface. इसकी वजह के जो हमारे बबल्स प्रोड्यूस हुए हैं वेपर्स के इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड, उनकी जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि सरफेस ऑफ लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स उनकी निस्बत। This makes the bubble to come out of the liquid and burst upon the surface. इससे क्या होता है, इस फिनोमेना से क्या होता है, जो हमारे बबल्स हैं वो बाहर आते हैं और वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। Thus a constant stream of bubbles come out at the boiling point. और हमारे पास जब boiling point reach हो जाता है तो बबल्स constant stream के साथ आते हैं और वो burst होते जाते हैं upon the surface. Now question 6 part D. How will you explain the effect of pressure on boiling point of liquid? हायर द प्रेशर हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जितना हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना हमारे पास प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड द मॉलिक्यूल स्टार्ट गेनिंग एनर्जी। जैसे जैसे मॉलिक्यूल या लिक्विड को हीट करते तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। Basically, at the boiling point of any liquid, the molecules on the surface of liquid tries to jump into the atmosphere by their energy. जब हमारे पास boiling point of liquid achieve हो जाता है तो molecule जो surface के ऊपर present होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो jump कर जाए into the atmosphere due to the increasing energy. But the atmosphere above the liquid surface exert pressure on the molecule. लेकिन atmosphere क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और जब मॉलिक्यूल्स इनफ एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर को अपोज कर सकेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में जंप करने स्टार्ट हो जाते हैं। The boiling point of liquid increases with increase in pressure since a liquid vaporizes when molecules move faster and further apart, but while increasing pressure you are applying an external force to hold molecules close to each other. Boiling point लिक्विड का इंक्रीज होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और लिक्विड वेपोराइजेस होता है जब मॉलिक्यूल जो है वो तेजी से और एक दूसरे से दूर स्टार्ट मूवमेंट कर देते हैं। बट जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब रहें, क्लोज रहें। Now question 6 part C. Practically, how will you explain the effect of increasing pressure on boiling point or effect of decreasing pressure on boiling point? हमने बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब हम प्रेशर को डिक्रीज करें। तो फर्स्ट देखते हैं जी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। एज प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड सरफेस इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी needed for the liquid molecules to expand to gas phase also increases. तो जब हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो जो एनर्जी चाहिए लिक्विड मॉलिक्यूल्स को ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैस फेज वो भी इंक्रीज हो जाती है, और हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि हम लिक्विड से गैस फेज में मॉलिक्यूल्स को ले जा सकें। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड राइजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, तो इससे क्या होता है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। Explanation के लिए food can be cooked easily in pressure cooker which is closed container. The vapors are not allowed to escape out and therefore develop more pressure. Pressure cooker में क्या होता है जो हमारे molecules हैं वो बाहर की तरफ नहीं आ सकते, इसकी वजह से क्या होता है जो हमारे इनर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारे पास इनर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर कुकर हेल्प अस इन कुकिंग द फूड क्विकली इवन एट हाई एल्टीट्यूड, और प्रेशर कुकर की मदद से हम जब ऊंचाई पे भी हैं तो हम फूड को इजीली कुक करवा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई में क्या होता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 2026 मिलीमीटर एट इज 130 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, और जब हम प्रेशर को कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो लिक्विड
को लेस एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लोअर हो जाता है। Explanation क्या है, the liquid which decompose at their boiling point can be obtained in a pure form under reduced pressure by vacuum distillation। ऐसे लिक्विड जो कि अपना बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाकर डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी हम प्योर फॉर्म ले सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल क्या जी, ग्लिसरीन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, बट इट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्लिसरीन का वो है 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन मसला ये है कि जो ग्लिसरीन है वो जब अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रीच करता है तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अगर हमने उसकी प्योर फॉर्म लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वेपर प्रेशर को कम करते हैं फ्रॉम 760 टू 50 मिलीमीटर ऑफ Hg बाय द यूज ऑफ वैक्यूम पंप। तो इससे क्या होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ग्लिसरीन का वो भी 120 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है फ्रॉम 290 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास ये बॉइल हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन। इन दिस वे लिक्विड कैन बी प्योरिफाइड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। नाउ क्वेश्चन 7 पार्ट ए, define and explain the term viscosity of liquid. How does the resistance to the layer causes viscosity? सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट इज विस्कोसिटी, अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लूइड का रेजिस्ट करना कि वो फ्लो करे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन बी poured very quickly from one container to another as compared to honey. The larger the viscosity, the more slowly the liquid flow. आप वाटर और हनी में अगर देखें तो वाटर को हम इजीली बहुत जल्दी से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब हनी की बारी आती है तो हमें खासी देर लगती है। उसकी वजह क्या है, जो वाटर है उसकी जो है वो विस्कोसिटी लो है एज कम्पेयर टू हनी, और जैसे जैसे हमारे पास विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज होगी, और उतना ही कम जो है वो स्लो स्पीड के साथ हमारा लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा। विस्कोसिटी मेजर्स हाउ इजीली मॉलिक्यूल स्लाइड बाय वन अनदर। विस्कोसिटी मेजर करता है कि हमारे मॉलिक्यूल जो कैसे एक दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करते हैं। This observation shows that water has less viscosity as compared to honey. How does the resistance to the layer causes viscosity? To understand the concept of viscosity, consider liquid flowing in a tube is made up of series of concentric circular layers. The resistance to flow is due to internal friction between the layers of molecules. The layer adjacent to the walls have the lowest velocity. Each layer exerts a drag on one another and thus causes resistance to flow. अब जब हम कंसिडर कर लेते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है इन ट्यूब जो कि कंसिस्ट है ऑफ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर लेयर, तो हमारे पास के जब हम फ्लो करवा रहे हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है फ्लो करवाने में। वो क्यों आ रही है, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो लेयर बिल्कुल वॉल के साथ अटैच हैं उनकी क्या है वेलोसिटी भी लो है, और हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर ड्रैग एक्ट कर रही है, और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे पास फ्लो में रेजिस्टेंस आ रही है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन और ड्यू टू द ड्रैग फोर्स ऑफ वन लेयर ऑन अनदर, और ड्यू टू द वॉल्स के जो वॉल्स के साथ हमारी लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी लो है। Now question 7 part A, define and explain the term viscosity of liquid. How does the resistance to the layer causes viscosity? Now अब हम देखते हैं ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है जी, पास्कल सेकंड और PA into S। Now ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है जी, नॉन ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है पॉइस। पॉइसेंटाइल एक साइंटिस्ट था जिसने विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया, इसकी वजह से जो नॉन ऐसे यूनिट है वो है पॉइस। 1 poise is equal to 0.100 kg per meter second, और in gram 1 poise is equal to 1 gram per centimeter second, और 1 Pascal second is equal to 1 kg per meter second is equal to 10 pies. Now question 7 part B. What are the factors affecting viscosity of liquid? Molecular size and shape. Molecular size and shape strongly influence viscosity.
Liquids such as water, methanol, and benzene, whose molecules are small and compact, have low viscosity. जो मॉलिक्यूलर साइज है या शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं जी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को। अब लिक्विड जैसा कि वाटर हो गया, मिथानॉल हो गया, बेंजीन हो गया, या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे लिक्विड्स जिनके जो मॉलिक्यूल्स के साइज है वो स्मॉल है और वो कंपैक्ट है, तो उन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, विस्कोसिटी लो होगी। Whereas liquid having large and irregular shaped molecules like honey, glycerin tend to get merged up with each other. This inhibits the flow of molecules and lead to high viscosity। या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बहुत बड़े हैं और उनकी जो शेप है वो irregular है, जैसा कि हो गया हनी, ग्लिसरीन। इसमें क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं और इससे क्या होता है, जब हम उनका फ्लो करवाते हैं तो रेजिस्टेंस इन फ्लो आता है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो उनकी विस्कोसिटी है वो हाई है। नेक्स्ट है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे जैसे हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी, जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। लिक्विड हुज मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर विस्कस देन अदर मॉलिक्यूल्स विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो ज्यादा विस्कस है देन एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर इज मोर विस्कस देन मिथेनॉल बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एज कम्पेयर टू मिथेनॉल। तो इसकी वजह से क्या है, जो वाटर के अंदर विस्कोसिटी है वो हाई है देन एज कम्पेयर टू मिथेनॉल। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा जल्दी से या तेजी से पास करते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसकी वजह क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो उनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम हो जाती है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन के साथ बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। This dependence is quite noticeable for highly viscous liquids such as honey. It is easy to pour this liquid when hot than when cold. अब जब हम हनी के केस को देखते हैं तो जब हम हनी को एट रूम टेम्परेचर पोर करते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है कि हम उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सके और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं यानी कि उसको हॉट कर देते हैं तो हमारे लिए ये इजी होता है कि हम उसी लिक्विड को फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। Now, question 7 part C. Use the concept of hydrogen bonding to explain the concept of high surface tension, high heat of vaporization, or high boiling point. High surface tension. Surface tension is a tendency of liquid surface at rest to shrink into the minimum surface area possible. सरफेस टेंशन क्या है जी, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है जो कि रेस्ट के ऊपर है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया पे श्रिंक हो जाए। हाई स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर होता है उसके ऊपर स्ट्रेच मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती है। द फोर्स ऑन सरफेस एक्टिंग डाउनवर्ड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So molecules containing high hydrogen bonding has high surface tension। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उनकी सरफेस टेंशन भी क्या है, ज्यादा है। High heat of vaporization, it is the amount of heat needed to turn 1 gram of liquid into vapor। जो हमें हीट रिक्वायर होती है कि हम 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करवा सकें इन 1 ग्राम ऑफ वेपर्स विदाउट राइज इन टेम्परेचर, उस हीट को हम कहते हैं heat of vaporization। Water has a high heat of vaporization due to extensive bonding. A large amount of heat is required to evaporate a small amount of water। अब वाटर के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को एवेपोरेट करवाना हो तो हमें हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिक्वायर होगी। Molecules containing hydrogen bonding has high heat of vaporization। Now next है जी high boiling point। वाटर has high boiling point due to strong hydrogen bonding। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। Now question 8 part A, define and explain the phenomena of surface tension। The force in acting at right angle on a unit length of surface of liquid is called surface। जो force act कर रही होती है at right angle on a unit length
ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। यूनिट के जी सरफेस टेंशन के वो हैं जी जॉल पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जॉल पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर। Explanation: surface tension is a property of surface of liquid to act as if there is a membrane stretched across it. Surface tension की जो property of liquid है कि वो stretch हो जाए in the form of membrane. We can understand that the level of liquid exhibits surface tensions. All molecules below the surfaces of liquid are surrounded in all direction by other molecules. जितने भी molecules हैं below the surface of liquid वो क्या है surround किए गए हैं by other molecules. Thus the force exhibited by such molecules is balanced in all direction, whereas the molecule at the surface of liquid has molecule beside it and beneath it but no one above it. तो अब जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उनमें क्या है कि साइड में भी मॉलिक्यूल्स हैं और नीचे भी हैं, लेकिन उनके जो ऊपर है वो कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फोर्सेस है वो अनबैलेंस हो जाती हैं और नीचे की तरफ जो है वो फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से क्या जो हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड मॉलिक्यूल्स मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। The molecules at the surface therefore feel a net attraction inward which creates surface tension. तो जो मॉलिक्यूल हमारे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसमें क्या है, अट्रैक्शन फील होती है अंदर की तरफ और इससे जो है वो सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। For molecule to come to the surface, it must overcome the attraction directed downward. तो अब जो मॉलिक्यूल्स चाहते हैं वो सरफेस पे गिरे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। दिस मीन्स वर्क इज टू बी डन टू पुल इट ऑन द सरफेस। तो हमें क्या एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा ताकि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ सके। Therefore, increase in surface area of liquid requires an input energy, और जब हमने surface area को increase कर दिया तो हमारे पास input energy भी increase हो गई for incoming molecules on the surface of water या liquid. Molecules at the surface of liquid are less stable than those inside it, और जो molecule surface के ऊपर present होते हैं वो unstable होते हैं than molecules present inside the surface molecules. So liquid is stable when the fewest molecules are at its surface, और जितने कम molecules हमारे surface के ऊपर present होंगे तो उतने ही liquid जो है वो हमारे पास stable होगा। This occurs when the liquid has minimum surface area, और इससे क्या है जो ये तभी possible जब हमारे liquid के पास जो है वो surface area minimum है। Spheres have less surface area per unit volume than any other, और जो हमारे पास liquid shape के molecules हैं ये container हैं उनके जो है वो surface area जो है वो कम है than any other. Therefore small drops of liquid tend to be spherical. तो जो हमारे पास liquid के molecules होते हैं वो क्या होते हैं, spherical in shape होते हैं। Now question 8 part B continue है जी। Next है जी intermolecular forces. What are the factors affecting surface tension? Intermolecular forces. Surface tension of What are the factors affecting surface tension? अब हमने बताना है कि surface tension के ऊपर कौन से factors वो affect होते हैं। सबसे पहले जो intermolecular forces. Surface tension of liquid depends directly on the strength of intermolecular forces. जो surface tension है वो depend करती है directly कि हमारे पास intermolecular forces की strength क्या है। अगर तो ये strength ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वो greater surface tension होगी, और अगर हमारे पास weak intermolecular forces होंगी तो हमारे पास surface tension भी क्या होगी, weak होगी। Example क्या है जी, the surface tension of water is higher than many liquids such as alcohol, ether and benzene. ये हमारे पास surface tension है water की वो क्या है, ज़्यादा है than many liquid जैसा कि alcohol, ether और benzene के अगर हम comparison करें water के साथ तो water की surface tension क्या है वो ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, जो water के molecules हैं उनके अंदर hydrogen bonding present है। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर। सरफेस टेंशन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसकी वजह कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है,
और इससे क्या होता है, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम हो जाती है और सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है जी नेचर। Surface tension is different for different liquid due to the presence of different types of intermolecular forces. Different molecules के लिए different surface tension है क्योंकि different molecules के लिए different types of intermolecular forces present होती हैं. Now question 8 part C. Define dynamic equilibrium between two physical states. Whenever a change of state occurs, the system moves towards the condition of dynamic equilibrium. जब भी change occur होता है तो system move करता है towards the condition of dynamic equilibrium. अब dynamic equilibrium क्या होता है कि ऐसे stage होता है जहाँ पर जो दो equal opposing changes हैं वो equal rates के अंदर अकर हो रही होती है, यानी कि अगर लिक्विड वेपर में जा रहा है तो एट द सेम टाइम वेपर लिक्विड में आ रहा है, तो इस स्टेज को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज गोल फॉर ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन एंड ऑल द फिजिकल चेंजेस. डायनेमिक इक्विलिब्रियम गोल होता है फॉर ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन, और जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके भी जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो एज ए गोल होता है. एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड वाटर, यानी कि सॉलिड वाटर अगर आइस के फॉर्म में है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा विद लिक्विड वाटर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारे पास जो है वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में भी जा रहा होता है और सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी आ रहा होता है. आइस टू वाटर या वाटर टू. नाउ क्वेश्चन 8 पार्ट बी. डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. Molar heat of fusion. The heat absorbed by 1 mole of the substance as it is converted from solid to liquid उसको हम कहते हैं molar heat of fusion. जितनी amount of heat absorb की गई है by molecule के वो convert हो from solid to liquid उसको हम कहते हैं जी molar heat of fusion. अगर हमने वाटर का देखना है तो वाटर अगर हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है वो है जी 6.02 किलो जूल पर मोल. Molar heat of vaporization. The heat absorbed by 1 mole of the substance as it is converted from liquid to a vapor at its boiling point. जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है बाय मॉलिक्यूल्स ताकि वो कन्वर्ट हो फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, जब बॉइलिंग पॉइंट रीच करते हैं तो उस हीट को हम कहते हैं जी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब वाटर के केस में क्या, अगर हमारे पास लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स जा रहा है तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यानी कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.7 किलो जूल पर. क्वेश्चन 9 पार्ट ए. डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल क्या है जी, अ सब्सटेंस व्हिच फ्लोज लाइक लिक्विड बट हैज सम डिग्री ऑफ ऑर्डरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड की तरह फ्लो करे लेकिन उसमें किसी हद तक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं जी लिक्विड क्रिस्टल. या हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं लेकिन उनमें कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की भी पाई जाती हैं विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज, उनको हम कहते हैं जी लिक्विड क्रिस्टल्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, लिक्विड क्रिस्टल्स हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टल्स. जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं. लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइडिटी. लिक्विड क्रिस्टल्स की विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होती है और फ्लूइडिटी भी होती है. और जो सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या है जी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स हैव सम ऑर्डरली अरेंजमेंट. ऑर्डरली अरेंजमेंट भी होती है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी अकर होती है या पाई जाती है लिक्विड क्रिस्टल. Now question 9 part B. What are the uses of liquid crystal in daily life? They are used as temperature sensor. This is because the liquid crystal change their characteristic with change in temperature. हम इनको as a temperature sensor use कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल जो है वो अपने कलर को चेंज करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर वेरीज करता जाता है. They are used to find the point of potential failure in microelectronic circuit. हम इनसे microelectronic circuit में जहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है या पोटेंशियल हमारे पास नहीं आ रहा, पोटेंशियल फेलियर है, उस पॉइंट को भी हम
फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स. दे आर यूज्ड टू लोकेट द वेन्स, आर्टरीज एंड ट्यूमर्स. एग्जाम्पल क्या है जी? व्हेन अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ इलनेस, अ ट्यूमर शोज अप हॉट एरिया विच इज कलर्ड ब्लू. जब हम इलनेस वाले एरिया के ऊपर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स को कोट करते हैं, उनकी कोटिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास ट्यूमर होता है वहां का एरिया जो है वो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. दस दिस टेक्निक हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर्स. और इस टेक्निक से हम ट्यूमर्स की अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं. Liquid crystals are used in the display of number and letter of electrical devices such as digital watches, calculator and computer. जो कंप्यूटर या कैलकुलेटर या डिजिटल वॉचेस के अंदर जो है हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आ रहा होता है. Liquid crystals are used in LCD screens or TV. How will you differentiate liquid crystals from pure liquid and crystalline solid? हम लिक्विड क्रिस्टल्स को प्योर लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? लिक्विड क्रिस्टल क्या है जी? ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन. या एन आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. जबकि लिक्विड क्रिस्टल क्या है? वो आइसोट्रोपिक ही रहते हैं, यानी कि वो हर डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे. प्योर लिक्विड रिमेन्स एज सच. A liquid crystal phase is intermediate in between pure liquid and crystalline phase. जो लिक्विड क्रिस्टल का फेज है ये इन बिटवीन है बिटवीन प्योर लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड फेज के दरमियान. नाउ क्वेश्चन 10. व्हाट आर एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज? Whenever matter undergoes a physical or chemical change, it is always accompanied by an energy change in the form of heat. जब भी मैटर अंडरगो करता है यानी कि गुजरता है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज से, तो ये किस वजह से होता है? बाय एन एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस चेंज इन एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और हम इनकी मदद से क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मेजर कर सकते हैं. इन केस ऑफ फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड एंथैल्पी चेंज. अगर हमारे पास फिजिकल चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस चेंज को हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज इज ऑफ थ्री टाइप्स. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है जी? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय वन मोल ऑफ अ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की गई है वन मोल ऑफ अ सॉलिड जो है वो मेल्ट हुआ है इनटू लिक्विड फॉर्म एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. नेक्स्ट है जी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब की गई है मॉलिक्यूल से जब वो वन मोल ऑफ लिक्विड से वन मोल ऑफ वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नेक्स्ट है जी मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन. The amount of heat absorbed when 1 mole of solid sublimes to give vapor at a particular temperature at 1 atmospheric pressure is called molar heat of sublimation. Molar heat of sublimation के जब 1 mole of solid directly convert हो in 1 mole of a vapor without passing to liquid phase, उसको हम कहेंगे जी molar heat of sublimation. All these enthalpy changes are positive because all are endothermic processes. और जितनी भी है ये molar heat of fusion, molar heat of vaporization या मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये क्या है? सारे पॉजिटिव चेंज है क्योंकि इन सब में क्या है? हीट एब्सॉर्ब की गई है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं ये. नाउ क्वेश्चन 11. हाउ विल यू एक्सप्लेन द टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? हमने बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है on the basis of effect of pressure on boiling point with the help of two practical applications.
सबसे पहले हम देखते हैं जी इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर तो हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो हमारे पास क्या है, लिक्विड को लेस एनर्जी चाहिए कि वो गैसियस फेज में जा सके, और इससे क्या होता है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। एप्लीकेशन क्या है जी, एट इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्लाइन, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कम से कम होता जाता है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और इससे क्या होता है जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्लाइन हो रहा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या है वो चेंज हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर बिकम turning to vapors, which occurs when its vapor pressure equal to the atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड जो है वो इनटू वेपर्स कन्वर्ट या स्टार्ट कर दे, और ये कब होता है जब हमारा वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हायर एलिवेशन पे क्या होता है हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का वो भी क्विकली रीच हो जाता है एट लोअर टेम्परेचर। यानी कि इससे क्या हुआ जब हमारे पास लिक्विड प्रेशर या वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ। नाउ नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। एज द प्रेशर अप्लाई टू द लिक्विड सरफेस इन इंक्रीज, जब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो क्या है जी द एनर्जी नीडेड फॉर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू एक्सपैंड टू गैस फेज आल्सो इंक्रीजेस। तो जो हमें एनर्जी चाहिए कि लिक्विड जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो सके वो भी क्या है इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या है हेंस अ हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैस फेज। तो हमें हाई एनर्जी चाहिए कि हम लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट करवा सकें, तो इससे क्या होगा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है जी, फूड कैन बी कुक्ड इजीली इन प्रेशर कुकर विच इज क्लोज कंटेनर, द वेपर्स आर नॉट अलाउड टू एस्केप आउट एंड देयरफॉर डेवलप मोर प्रेशर। प्रेशर कुकर में क्या होता है जो हमारे पास वेपर्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी कि वेपर जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो कंटेनर को लीव नहीं कर सकते और वो एट द टॉप ऑफ कंटेनर ही रहते हैं, और उससे क्या होता है जो हमारे पास प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यही वजह है कि प्रेशर कुकर को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग द फूड क्विकली इवन एट हाई एल्टीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है जी, हाउ कैन यू इंटरप्रेट द anomalous behavior of water? A liquid is said normal if it decrease its volume and increase its density upon freezing। अब जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम नॉर्मल तब कहेंगे जब उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो और जो उसकी डेंसिटी है इंक्रीज हो जब हम उसको फ्रीज करें। सिमिलरली जब हम उसको मेल्ट करें तो वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज होना चाहिए और डेंसिटी क्या है डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास बिहेवियर जो है वो अपोजिट हो रहा है या एबनॉर्मल हो रहा है तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं anomalous। if it does the exact opposite of what the normal liquid does। अब वाटर के केस में क्या होता है, वाटर डज नॉट एक्सपेंड बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इंस्टेड इट कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में आता है तो वाटर क्या करता है एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है ये अपोजिट बिहेवियर है फॉर नॉर्मल लिक्विड। उन्हें क्या करना चाहिए कि जब हमने उनको हीट किया है यानी कि उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उन्हें एक्सपेंड होना चाहिए, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। जबकि वाटर को जब हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसने क्या किया वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है वो एक्सपैंड होने स्टार्ट होता है। दिस मीन्स वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से क्या है जो हमारे पास बिहेवियर है वाटर का वो एनॉमलस है, यानी कि एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करता। एप्लीकेशंस क्या है जी, due to this anomalous behavior of water, many otherwise impossible processes exist, like existence of aquatic life even under ice।
इस बिहेवियर की वजह से क्या है, जो इम्पॉसिबल प्रोसेसेस थे वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि बर्फ के अंदर एक्वेटिव लाइफ का जिंदा रहना, weathering of rock to create soil and the starting of primary succession of life. ये next application है इसकी. Transpiration in plants which is dependent on cohesive forces, that is hydrogen bonding. The existence of water in liquid state due to its high heat capacity. Floating of ice on water which is not seen otherwise. Now that's all about exercise questions of chapter number 5 liquids. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.